الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پتمن کہن دروسن مز ووت اسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہندین تمن دعان متعلق پڑھن یم دعازن حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کس تعمیرس دوران رب العالمینس منجے. اخ دعا منجو تمو کہ اے بارلا خدائی اس بنا پنن مکمل متی تو فرما بردار اور سانہ ذریت مز کڑ اخ امت اخ تس یس چون متی تو فرما بردار آس. اور ام پتہ کریو رب العالمینس دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے بارلا خدائی یس امت مسلمہ ژٕ سانہ ذریت مز کڑھ تم مز کرن مبعوث اخ رسول. اور حدیثس مجھ آمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں. اور تفسیر ابن کثیرس مجھ کہ اس دعا سے مراد یا اس رسول سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتمن دون دروسن مز ووت اس پڑھن کہ اس یہ آخری رسول تو نبی آس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سند مقصد بعثت کیا آس، یعنی کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تم مز پڑھ اس ز مقاصد. اخ پڑھ یتلو علیہم آیاتک، یعنی وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات اس کتاب سے پڑھے گا جو کتاب اس پر نازل ہوئی. اور ام تل فکر تران کہ سارے کھت گۄڈنِچ کٲم یۄس زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس آج سپرد کرنے سہ کہ لُکن برونٛٹھ کن کٔرِو میانن تعلیم میانن آیاتن ہٕنٛز تلاوت. اوے چھِ أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتن تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٲنٛسہِ تہِ دعوت دی ہیں کوئی لمبی چوڑی تقریر یا کوئی خطاب نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر تُہۍ سیرت چن کتابن منٛز وٕچھو مکی دور میں تو بالکل بھی کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو یا کوئی تقریر کی ہو، بلکہ یس تہ سمکھن اوس دعوت کرتے تھے. یعنی تبلیغک یا ابلاغک یس زن واحد ذریعہ اوس یا یس زن واحد طریق اپنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص مکہ معظمہ من وہ یہی تلاوت آیات. اور دویم کام یس زن اس یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد خاطر آئی سوزن سو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا. ات مز ونے میں کہ سارے کھت اہم کت یاد تھاوی کہ ایک تو قرآن کی تلاوت ہے مگر دوسرا قرآن کی تعلیم. یہ دو الگ الگ فرائض ہیں. تلاوت الگ فرض اور تعلیم الگ فرض. اور اس میں نے سب سے اہم نقطہ اسے یاد تھاون سہ یہ کہ قرآن کی تعلیم سے مراد ہے کہ صرف ترجمہ ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی، بلکہ قرآن پاک سوئی تشریح سوئی ترجم قابل قبول یس تشریح کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں تکیاز سارے کھت عظیم فتنہ یس زن وکن ماڈرن دورس مز وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو صرف ایک پیغامبر کے طور پر سمجھا جاتا ہے. آج بڑ بار فتنہ دنیا مز یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں نام نہاد علماء سمجھن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف پیغام لانے والے کی تھی، باقی ان کا کوئی کام. مگر یہ آیت اس بات کی نفی کرتی ہے اور یہ سمجھاون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغام لانے والے تھے لیکن اس پیغام کی صحیح تشریح بھی کرنے والے کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ. میں دیتا ایسا مثال حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ روزے کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی انہوں نے اس کا کیا مطلب لیا تھا اور صحیح مطلب پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اسی بیاکھ مثال دم بہ قرآن پاکس مز کہ ومن کسب سیئۃ فیجزا لہ، یعنی جو کوئی گناہ کا کام کرے گا
अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका ज़रूर उसका मज़ा चखाएगा, यानी सज़ा ज़रूर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़न दौड़न और अर्ज करुख, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा शख्स ऐसा हो सकता है जिससे कोई गलती ना हुई हो। इसलिए अल्लाह ताला फरमावन कि युस कहां साथी कहां गलती करे, युस कहां साथी कहां गुनाह करे, उसका मजा या उसकी सजा हम उसको जरूर चखाएं। तेल कुस हज बच अल्लाह तबारक व तआला सिंध अजाब निश। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि इस आयत की तफसीर या इस आयत का तर्जमा या मतलब ये नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि ए अबू बकर, क्या आपको कभी सर में तकलीफ नहीं होती है? क्या तशीना काला जुही दुआत कर, क्या आपको बाकी कोई तकालीफ नहीं पहुंचती हैं? अर्ज करो या रसूलुल्लाह अहनस कुन साथ कालस ते दुआत कर, कुन साथ का मुसीबत यवन या का परेशानी यवन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा अनजाने में उसे कोई लग़ज़िश होती है तो यही उसका सिला है, यानी यही मकसद है इसका कि उसको हम जरूर इसकी सजा चखाएंगे। गो अम तौर फिक्र कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस तशरीह कुरान पाकस कर वही तशरीह काबिल कबूल है। और इससे यह भी पता चला कि आम इंसान क्या बड़े से बड़े सहाबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह के मोहताज थे। ये दयम कथ। और आज यम जन भी काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपर्द आय करना, वो है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी किताब की तालीम के साथ साथ वो लोगों को क्या समझाएंगे? हिकमत। हिकमत उलमाए किरामो वारियाह माना करमित, मगर तफसीर इब्न कसीरस मज अमिक ज माना आमद खुसूसी तौर पर अथ आयत किस तनाजुरस मज बयान करना। एक माना है हिकमत का दानाई की कोई बात, यानी दानाई जिसको हम आम तौर पर कहते हैं। और ब्याख माना हिकमत कोरमुत तुमो कि जन असली इल्म, या जिसको हम कहते हैं रसूख फिल इल्म, यानी इल्मुक जन हकीकत, इल्म की हकीकत को पाना, इसको भी कहते हैं आतिश बन क्या हिकमत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के मकासद में से तीसरा मकसद बयान किया गया कि वो एक तो लोगों को तिलावत करेंगे आयत की, दूसरा इस किताब की तालीम देंगे, लेकिन इस किताब की तालीम के साथ साथ क्या समझाएंगे लोगों को? दानाई समझाएंगे, या जो असली इल्म का पता है वो देंगे लोगों को। ये तार पर एक मिसाल से फिक्र अक्सर मुफस्सिरीन माना कोलमत अत हिकमतस, हिकमत से मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये मिसाल अख कंपनी या आम तौर पर आपने देखा होगा कि यम सातन मुख्तलिफ डिशेज यम जन आज प्रेपेयर गसन, उनके लिए आज बाज़ाब्ता मार्केट में किताबें भी मिलती हैं, यानी कौस डिश कित करो प्रेपेयर, कौन सा खाना कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए आज मार्केट में किताबें भी दस्तयाब हैं। अगर का शख्स वन कि बासा पढ़ी किताब योतन और किसी एक्सपर्ट से इस किताब का माना भी मैं मालूम करूंगा, बताइए क्या वो इस तरह की डिश तैयार कर सकता है जो इसमें लिखा है? ना। ब्याक मिसाल अ शख्सा वन दपि बुश अंग्रेजी जानन, मे अंग्रेजी फिक्री ते तारन, मगर वो कहेगा कि मैं खुद से मेडिकल की किताबें पढ़ूंगा और बासा कर सोरे इल्म हासिल जिसमें मेडिकल चन किताबन मज, क्या कोई उसको डॉक्टर कहेगा? ना। या कोई शख्स उससे अपना इलाज करवाएगा? क्या करना है? क्योंकि जब तक वो किसी माहिर की सोहबत में इस इल्म को नहीं सीखेगा, या योतान का अमिस ब्रोह का प्रैक्टिकल दी कर किताब थायस ब्रोह के दपस आ इल्म छे निश, मगर वह हाव चे ये सुन कित रन गोड़ क्या त्राउन पत क्या त्राउन प्रैक्टिकल दी अमिस ब्रोह कर, तब जाकर वो ऐसी डिश तैयार करने में कामयाब हो सकता है। यही मिसाल शरीयत की भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से उन पर किताब नाजिल हुई, इसको इन्होंने लोगों तक पहुंचाया तिलावत के जरिए। अब इस तिलावत का या इस किताब का सही मंशा क्या है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशरीहात या अपनी अहादीस मुबारका के जरिए लोगों को समझाया। मगर इतना ही लोगों की हिदायत के लिए काफी नहीं था, बल्कि वह प्रैक्टिकल नमून हावन लुकन कि अत किताब पे किस ही अमल करना। उस प्रैक्टिकल नमूने को हम क्या कहते हैं? सुन्नत। तो इसलिए वल हिकमा से मुराद है
कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो किताब की तालीम देंगे, साथ साथ खुद प्रैक्टिकली इस किताब पर अमल करके लोगों को दिखाएंगे कि इस पर अमल कैसे किया जाता है। इसी अमल करने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को क्या कहते हैं? सुन्नत। तो असली माना हो गया, एक तो ये तिलावत करेंगे लोगों के सामने, दूसरा इस किताब की तशरीह करेंगे या इसका माना लोगों को बताएंगे, तीसरा अपनी सुन्नत के जरिए लोगों को वाज़ेह करेंगे कि इन आयात पर कैसे अमल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुरान पाकस में हुक्म कि तुम पढ़ियो सा नमाज, नमाज कायम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की कि कायम करने का मतलब क्या है, यानी वक्त का ख्याल रखना, जगह का पाक होना, किबला रो होना, इथे पठनस मुतय्यन क्या। मगर रकात कज़ा पढ़िए ये को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कहते हैं, पहले था वो तिलावत यानी अकीमुस सलाह कर तिलावत, फिर लोगों को इसकी तशरीह बताई कि नमाज कैसे पढ़नी है, किस टाइम पर पढ़नी है, कबिल कोकुन किस पढ़ने से रुख था। मगर फिर खुद उन्होंने पढ़ के दिखाई और हुक्म दिया कि सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली। तो इस बात को कहते हैं हिकमत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इबादत को करने का दिखाया। गो अवै आवन गो यजन फलाश या कामयाबी यजन, उसके लिए यही 4 शराइत हैं कि पहले हमें तिलावत आयात करनी है, फिर उन आयात को समझना है, फिर उन आयात पर अमल करने के लिए हमें रुजू कहाँ की तरफ करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। गो यम 3 काम यम जन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान है और जो जिस मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस किया गया। 3 कत हदीसस मज या कुरानुक हुक्म कि वअकीमुस सलात व आतुज ज़कात, आप नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़कात का माना भी बताया, इसकी तशरीह भी की और सुन्नत से फिर दिखाया भी कि ज़कात कैसे अदा करनी है, अमुक निसाब क्या आस, कमिस पे लाजिम गसन, किसको ये देनी है। तो ये तो अपनी सुन्नत या अपने तरीके से या अपने कौल से या अपने फैल से लोगों को दिखाया। तो इसी कौल और फैल या पूरे मिन जुमला सुन्नत को कहते हैं हिकमत। गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकासिद आज बयान करना, उनमें तीसरा मकसद था कि ये हिकमत की तालीम देगा लोगों को, यानी ये सुन्नत सिखाएगा, अपना तरीका सिखाएगा किनको? लोगों को। ब्या कत अथ हिकमत सहित समझुन थोड़ा मुश्किल, मगर तय कर कोशिश। रब्बुल आलमीन मंगू दुआ कि बह गस हकुन यह कत समझाइथ। प्रेथ कह इल्म हासिल, मे वना हिकमत ब्या माना सही इल्म तक पहुंचना, यह भी हिकमत का एक मतलब है। इल्म हासिल करने अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जराया थमित, यह समझिए तुम कत। सबसे पहला जरिया जो इल्म हासिल करने का है वो इंसान के हवास खमसा है, यानी इल्म हासिल करने खुदा सबन क्या जरिए थमित। तमो मुझ सारे खुद गोडनुक जरिए तुम गई इंसान सद सेंसेस, अच कान नश। मिसाल के तौर पर बुशुस वुचन, बुशुस वनान आ शिराज साहबस क्रुहन फेरन लगित, गो मे कोर इल्म हासिल अत चीजस मुतलिक, मगर कम जरिए पन्नो अशो सत हवासो सत। इथे पठनस मे ब्रोट कह चीज बुशुस इसको मैं चख कर देखता हूं कि ओहो यह वारिया चोक या यह वारिया ट्योट, गो अत चीजस मुतलिक कोर मैं इल्म हासिल कम जरिए? पन्ने ज़बान हिंद जरिए, हवास जरिए। इथे पठन बह होतन शोर बोजान, मे बूज कतान गई लड़ाई, अल्लाह ताला बचाई, या झगड़ू को अच्छे शोर। तो उस चीज के बारे में इल्म मैंने किससे हासिल किया? अपने कानों से। मगर युस इल्म हवासों सहित हासिल कर, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, अच्छ का हद आख, उस हद पर पहुंचकर हम नहीं देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर सारी साइंसदान वनान और ये जन एक्सपेरिमेंटो जरियो या जन ऑब्जर्वेशन तम जरिए वन हवास में सच जरासीम, क्या हम उन जरासीम को देख सकते हैं आंखों से? गो अशो दिस कुछ हदस तान काम, मगर अतन अशन हिज काम वन कह। इथे पठनस कान यम जन इमन हिज काम आवाज बोजन, मगर क्या सुपरसोनिक जेट्स या क्या जानवर तिस आवाज करन जो हमारे आंख ये जो हमारे कान नहीं सुन सकते। वो इसका मतलब है एक हद पर पहुंचकर ये हवास काम नहीं करते हैं। अशो सह वुचान, मगर मे जन वन क्या मे पत की क्या गसन, क्या बह का वन ना क्या
मे पत्की अगर यथनस आसि कनहपन या जरिल आस मे बाकी हो पत्की कनहपन बुझ हकन यह वुचित गो मेरी आंखों की एक लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को मैं पार गो यमन हिज हद यजन यमन हवासन हिज ये एक हद तक काम करते हैं अम पे अल्लाह तबारक ताला ब्याक जरिए दितमुत समझन वो है अकल अकल सकान इदराक कर कहन चीजन हूं मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये टेबल है अच्छो वुच कि यम टेबल रंग युथ इथे पे अत मे फील यह सख्त चीज यम हो मे हवासो मगर अगर मैं कहूँ कोई वन में कह वन में हे ये टेबल कित बनो बे क्या जवाब दी अमिस बह वन अमिस बाजार ओनमुत प्लाईवुड कह छान यम बनोमुत कह रंग वोल यम रंग तो इस इल्म तक मुझे किसने पहुंचाया मेरी अकल ने तान वातनोस बह कम मगर यह अकल यह इंतहाई मुफीद चीज अल्लाह तबारक ताला दिसमज मगर यह अकल हमेशा यह अकल प्रेथ लिमिटेशन और यह अकल हमेशा सही फैसले नहीं कर सकती है मिसाल दिम बह अगर अत अकल प्रिसो इंसान हसा कोर अल्लाह ताला इंसान हसा आव यह दुनिया मज अम सुन मकसद क्या है अगर हम खाली अकल से ये सवाल पूछेंगे कि बताओ दुनिया में आने का मकसद क्या है खाली अकल है क्या जवाब दे है क्या अकल जवाब दे ना इसका जवाब हमें किन से मिलता है अल्लाह की किताब से और अल्लाह के रसूलों से नत वारिया बड़ एथीस्ट दुनिया मज जो इंतहाई काबिल लोग हैं यमन अल्लाह तबारक ताला इंतहाई जहानत दिसमज यमन अल्लाह ताला इंतहाई सलाहियत दिसमज मगर तुम वनन हम आए हैं दुनिया में एंजॉय करने के लिए मरेंगे और खत्म हो जाएंगे वो उनकी अकल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती है कि इंसान के मकसद खतर दुनिया मज आमद गो अमिक मतलब गो अत अकली अत लिमिटेशन अत हद अब अहम बात यस समझ अकल अल्लाह ताला इंसान सारे अकल दिसम और अकल के जरिए ही इंसान दानाई की बातें सीखता है अकल सती इंसान क्या करन दानाई हिकमत का एक माना मैंने कहा ना दानाई अगर बेवकूफ इंसान का या अगर अल्लाह ताला बच्चे का मजनून या पागल इंसान क्या वो दानाई की कोई बात कह सकता है क्या तमिस अल्लाह ताला अकल दिसम मगर याद गो इंसान की अकल हमेशा सही फैसला नहीं करती है इंसान से अकल हमेशा सही फैसला कर अम खतर दिम बह मिसाल यह समझ तुम तराव सारी निंदर मगर यह समझ जरूरी तारीख मज ग्रोह द्रामुत फिरका आमुत तथ वन फिरका किरमानिया तमुक जन बानी तमुक उसका नाम था अब्दुल्ला किरमानी तवे अत फिरकस पे नाव क्या किरमानी फिरका यह गुमराह फिरका अम शख्सन वोन दोपन हे कुरान पाकस मज या रसूल के अहकामात तुम यम जन अकल खिलाफ इसलिए हम इस दीन को नहीं मानेंगे तिकाज दीन वन कि बहुत इंसान से अकल मुताबिक फैसला कर ये बात आप समझ लीजिए इसलिए तम वोन मिसाल दी तम तम वोन हमारे घर में होती है हमारी बहन अकिस इंसान से घरस मज कस बे सुन मिजाज सारे को ज्यादा पता अमिस बस पसंद क्या खानस मज चनस मज ये तो सबसे ज्यादा किसको पता होता है बहन को यम सात अम सुंद मिजाज जानन अमिस कम पलो पसंद लागन कम नापसंद कुछ खेन पसंद कुछ नापसंद कुछ पलो या कुछ फैशन पसंद कुछ अम अब्दुल्ला किरमानी वोन ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है हम एक आदमी की शादी एक ऐसी औरत से करते हैं जो इसके मिजाज से बिल्कुल वाकिफ नहीं है दूर का कूड़ा अम खुद बेहतर अमिस करो खानदर कमिस सह मिजाज सत्या सारे खुद ज्यादा मुसाबिकत थावन यह अमिस जिंदगी गुजारन लकट पे अमिस पे वपर घरस में एडजस्ट गन कहें और ये लड़का जो है इसको भी सहूलत हो जाएगी क्योंकि सारी यजन फितरत रलन सारी कत अब बताओ ये फैसला इसने किस बुनियाद पर किया अकली हिंदिस बुनियाद अगर आप मुझे बताओ अगर अकल के तराजू पर तोलेंगे तो ये जवाब या इसका लॉजिक सही है ये सही तिकाज अम बे या कंस इंसान बे वो तो इसके मिजाज से सही अगर निरी अकल की बुनियाद पर हम इसको गलत साबित करना चाहे तो क्या हम इसको गलत साबित कर सकते हैं ये कुछ चीज आप गलत साबित करना है
यही है वो असली इल्म, रसूख फिल इल्म, जो किसको मिला है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तवस्सुत से। हर मामले में चाहे अकल में ये बात आए या ना आए, अकल मुझे काफी विश्वास सही, मगर अकल अतन थी साइडस, अकल मज शरीयत हुक्म यी या नहीं। अगर इंसान इस बात पर पूरा शरई सदर के साथ अमल करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं वो हिकमत है, उसी में खैर है, तो वही हिकमत लेकर आए हैं रसूलुल्लाह। अमची तालीम दिस के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। बह दिम बाज़ाहिर मिसाल, ये इंसान ज्यादा तारी तमिस फिक्र युस हज बैतुल्लाह गोमुत या उमराहिम कोरमुत आस, जब हज के लिए या उमरा के लिए जाते हैं, बाज़ाहिर बासन ये बिल्कुल अल्लाह ताला बचाइन, सिर्फ समझान खतर, यह बासन पोसुक ति जिया, यह बासन वक्तुक ति जिया कोड़ गसन बाज़ाहिर अकल हिंद बुनियाद पे। और वहां जाते हैं केहन चीजन कारण तवाफ, केहन जायन गसन, और एक सुतून खड़ा होता है जिसको शैतान समझा जाता है, उस पर क्या मारी जाती है? कंकरी। अगर अकल पुरसो, अकल क्या वन? ये मजनूनापन है, ये पागलपन, बेवकूफापन। मगर मुसलमान को जो पूरा शरई सदर के साथ कहे ये हुक्म है किसका? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये सुन्नत है, इसी में हिकमत है, इसी में भलाई है। गो यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको इस हिकमत की तालीम देगा, यानी जो तरीका लेकर आए हैं कौन? और मुसलमान का यकीन तो पास आसन की यह 100% सही बात। तो ये तीसरा मकसद है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। अच्छा, वयुज़क्कीहिम, आखिरी त्रेयम मकसद और चूरिम मकसद वयुज़क्कीहिम, और यह आपका क्या करेगा? तज़किया। केमिस तज़किया केमि करे? जो खुराफात आपके दिलों में हैं, जो शिरको बिदात आपके दिलों में हैं, इथे पठन यम जन तवाहम परस्ती से, यम तय मुख्तलिफ बुत बनमित छु, यम तय मुख्तलिफ माबूद करमित छु, उन तमाम खुराफात से, उन तमाम बुराइयों से आपके जहनों को ये पाक करेगा। किसके जरिए से? मगर इस कुरान के जरिए से और अपनी सुन्नत के तरीके से। ये वो वयुज़क्कीहिम, यानी यह आपका तज़किया करेगा। तज़किया लफ्जी माना को पाक करना। अमी मुझे ज़कात, ज़कात मुतलिक फरमाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी कमाई का मेल है जिससे आपका पैसा क्या होगा? या आपकी कमाई पाक होगी। ज़कात मुझे तज़किया, तज़किया असली ज़कात मुझे गो त्रेयम चूरिम कमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये आपका क्या करेगा? तज़किया। और ये तज़किया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब साहबन हुन अमली तज़किया थे और यम जन बातनी तज़किया थे। अमली तज़किया को वो अभी तक बुत परस्ती में मुब्तला थे, आप उनको तौहीद परस्त बनाया। तुम मुशरिक, तुम बने में मुवाहिद। वो अभी तक डाकू थे या रहजन थे, आप उनको रहबर बनाया। ये वो कुछ तज़किया, ये तो हो गया ज़ाहिरी तज़किया। मगर बातनी तज़किया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन, यानी कुरान पाक में हसद, किब्र, गुरूर, या इथे पटन बातनी बीमारी यम जन इंसान सहल बहल लबन के, उनका भी तज़किया फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गो यम बुराई ते मिटाए अल्लाह तबारक व तआला सिंध फजल से, अल्लाह ताला सिंध व्यसन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तभी हम देखते हैं, तब वुशन और सीरत चन किताबन हदीस चन यमन किताबन से लबन वारिया सहाबी दर खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कहते थे खुदा अल्लाह ताला सिंध रसूल फलान अतुर गो म्यान दस, मे वन तो अत कित सदी बाब, फलान गुनाह को म्यान दस, अत वन तो तोबुक क्या हाल किया, इसमें बचने की क्यों? क्योंकि उनके दिलों का तज़किया हुआ था, पाकी हुई थी। वो कयामत के होलनाकी से डरते थे और वो चाहते थे कि हम पाक व साफ होकर दुनिया से ही अल्लाह के हुजूर हाजिर हों। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवन व युज़क्कीहिम, ये आपके लोगों का तज़किया करेगा। अमे आयत तल युजन सानि खतर सबक सुश मे वन ये 2 मिनटन वन बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस काम आया कस मकासद बयान करने यतलू अलैहिम आयातिही व यतलू अलैहिम आयात का व युअल्लिमुहुल किताब, यानी गडनिच काम यजन छ उसका ताल्लुक इल्म के साथ है। तिकाज तिलावत किताब हिंस कारण ये तो इल्म का मामला है, अमी किताब हिंस पत तशरीह कारण ये भी क्या मामला है? इल्म। मगर हिकमत यानी सुन्नत और तज़किया इसका मामला किसके साथ है? अमल के साथ। वो इसका मतलब है एक इंसान तब मुकम्मल हो सकता है जब वो अपने आप को इल्म से भी लेस करे, और मगर इल्म का था वन, इल्म वन किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, वो असली इल्म है। आखिरी का सो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, पहले तिलावत करेंगे,
फिर किताब की तालीम देंगे, फिर इसके बाद लोगों को हिकमत सिखाएंगे, अपना तरीका सिखाएंगे, और इसके बाद लोगों का तज़किया करेंगे। हालांकि बाकी आयात यम जन कुरानस मज में सूरज जुम्मास में वहां तज़किया पहले है, फिर है कुछ ये जन ये युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ये बाद में है। अमुक मतलब गो ये चीजें जो हैं अगर निरी किताब योतन आसे हिदायत खतर जरूरी तेल आसे गडनिक योतन यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब, मगर इसके साथ क्या जोड़ा गया, सुन्नत को भी और तज़किया को भी। इससे पता चलता है कि अकिस इंसानस हकन तो 100% कामयाबी मिलित क्या योतान सो इल्म सत पनुन का रहबर थाई। ये सबसे अहम बात इस आयत से निकलती है कि निरा इल्म हकन अकिस इंसानस फला दित क्या। हाँ, इल्म जरूरी है, मगर इल्म के साथ साथ इसका कोई मुरब्बी, कोई उस्ताद या कोई युजन अमसुद शेख आस जिस अमिस तरबियत कर। अलबत्ता शेख, मुरब्बी, उस्ताद उसको पहचानने का, उसको परखने की जो कसौटी है यजन कहवट सह क्या यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुल किताब, सह गस बाशरियत आसन, वो कुरान पर अमल करने वाला। ये न क्या आजिक पर आज के जो नाम नहाद पीर, बंगी, चरसी वो अपने आप को मुअल्लिम समझते हैं, वो अपने आप को शेख और पीर तरीकत कहते हैं, यलकि जन कुरान और साहिब कुरान सम दूर दूर का वास्ता ते आसन। आखिरी कथ तह बूझमुत नाव मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हिंदुस्तान के, थदपाई बुजुर्ग, बल्कि शेखुल यजन हिंद उनके भी वो उस्ताद रहे हैं। तमन सत लुक बायत, यानी वो उनकी तरबियत करते थे। बह वन तह आज कूता डायल्यूट गोमुत ये अत क्या वन तसव्वुफ यथ वन, इसमें कितनी खराबी आई है आज, और कूता आज इंसानस फूंक फूंक के कदम उठाने और ऐसे मुरब्बियों को ढूंढना है। उनके पास हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तुमन निश किस गर्ज से, अपनी इस्लाह की गर्ज से, यानी उमन निश आय तशरीफ न्यूख। और ये शाह अब्दुल कादिर रायपुरी आपको पता है कितने अजीम शख्स हैं, यम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। पाने करते अंदाज यह कम पाई शख्सियत आसे, यम आय मौलाना अब्दुल रशीद गंगोहियस निश, दोपस बुश यसान पन इस्लाही ताल्लुक तह जोड़न, ताकि मेरे दिल की इस्लाह मे मज गस तज़किया, यानी यम बातनी बुराई यम जन गसन दूर। अब देखिए आजुक तज़किया वुशु तह तो तंदुक तज़किया। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही इसे कहते हैं कि अच्छा तज़किया तो ठीक है, पहले बताओ कुरान पढ़ा है कि नहीं। कुरान छिया पढ़मुत, अब बताइए आज जो हम अपने सोफिया के साथ या यम जन नाम नहाद वनस बने में बायत या यम जन शेख बने में, क्या आज तक किसी शेख ने अपने मुरीद से कहा कि चा कुरान पढ़मुत? जहन आज वन युत कर सुबह 3 कलमन हज तस्बीह, शामन कर बनो पीर तरीका। लेकिन पहला सवाल जो अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी से करते हैं मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, दोनस क्या कुरान को पढ़ा है? वनस वापस जवाब दोनस हजरत तजवीद पढ़ ली है, 6 पारे नाजरा भी कर लिए हैं। दोनस इतने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे सामने बैठकर कुरान की तफसीर पढ़नी होगी। ये गई बायत, इसको कहते हैं बायत, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी कथ वन, सारे खुद गई प्रायोरिटी कुरान पाकस। पत दोनस अच्छा बेटे अम पत वन मे क्या अहदीस पढ़ी है, रसूल के हदीसों का मुताला किया है? वन मिशकात शरीफ पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ी है, बुखारी शरीफ भी दर्शन पढ़ी है। अच्छा ये तो पढ़ ली है, मगर क्या जिंदगी में इनको कहीं लागू भी किया भी है? इनको सीखा है कि इन अहादीस को कैसे जिंदगी में लागू करेंगे? हजरत वो तो नहीं समझा है। यहाँ बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि इन अहादीस को जिंदगी में कैसे अपनाते हैं। यो आमद अमिस पता शायद ये और यह कर अतस मज अत यह कर बायत पढ़ सा यह पत पढ़ सुबह यीचा तस्बीह, शामस पढ़ यीचा तस्बीह, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर इसके बाद तीसरा सवाल किया, अच्छा बेटे आप मुझे बताओ फिका में कुछ पढ़ा है? फिकाहस में क्या पढ़मुत? फिका में ये किताबें पढ़ी हैं। अच्छा इतना तो काफी है, ये तो ठीक है। पत वन अच्छा असली बात तो मैं भूल ही गया, अकीदा सीखा है या नहीं? अकीद यह हेचमुत क्या असा हेचमुत अकीद, अकीद को शायद बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़।
दुमनस हजरत मौलाना कासिम नानवती की एक किताब पढ़ी है अकीदे के बारे में, दुमनस इतना काफ़ी नहीं है। जिसनस पत फलानी 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 ये किताबें पढ़नी है तब जाकर आपका अकीदा सही। वनो गर्ज में कि ब्रोट यम जन सन मशाइख बैत करनावन, वो सिलसिला सिर्फ तस्बीहात पर या मामूलात पर ही खत्म नहीं होता था, लेकिन सबसे ज्यादा तरजीह किसको होती थी? कुरान को समझने पर, अहादीस का मुताला करने पर और अकीदे को सही करने पर। इसके बाद मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी वनन 6 महीने में बराबर हजरत की खिदमत में रहा, तब जाकर उन्होंने मुझे बैत किया। यानी शन रत पत को रस क्या बैत। आज तो लोग चले जाते हैं, उनको तो खलीफा भी बना देते हैं, बायत छन काफी का। इसलिए जरूरत है कि यथ आयतस पे पन्नी जिंदगी में साम है। क्या हमारी जिंदगी में तिलावत का मामूल है? और कुछ मामूल, वही मामूल जो मैंने सहाबा का कहा कि वो तो एक मंजिल एक दिन में तिलावत करते थे। चलिए अगर एक मंजिल नहीं, कम से कम एक पारा हम दिन में तिलावत करते हैं। अगर न आख पार, कम से कम कुछ रुकू की तिलावत क्या हम हर रोज ये आख साम है। दयम युअल्लिमुकल किताब, यानी वो आपको क्या सिखाएगा? किताब। साम हम पन्ने जिंदगी। क्या हमने अल्लाह की किताब को कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात के साथ समझने की कोशिश की है? अगर कर्मस तेल वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद पूरा कर यम खतर जन खैर उम्मत बनाना। और आखिरी बात, वल हिकमत व युज़क्कीहिम, वो आपको सुन्नत की तालीम देगा। है तो पन्ने जिंदगी साम, सायन जिंदगी में कूता सुन्नतुक एहतमाम, यानी वथनस मज, बहनस मज, खनस मज, चनस मज, नमाज में, हता कि हमारी नमाज भी अभी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसलिए और आखिरी व युज़क्कीहिम, हमने अपने दिलों का, अपने सोसाइटी का और अपनी मसाजिद का कितना तज़किया किया है, इस पर भी हमें सोचना है। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला फरमा पाची वनन इन्नका ए अल्लाह बेशक तू अजीजुल हकीम, जबरदस्त और हिकमत वाला। बहरहाल यह सह दुआ युस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा दौरान करे कि आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह गए सानि यह क्या सिलसिल मज या सानि नस्ब मज युन और तमहद मकासद क्या आसन तम त कर बयान हजरत अल्लाह रब्बुल आलमीन मंगो दुआ कि सदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।